میں ایسی لڑکیوں والی لڑکیوں کو بھی جانتی ہوں کہ وہ اپنی زندگی میں وہ کہتی نہیں ہم تو جب انشاءاللہ خوشی کا لمحہ تھا پیکج ہماری شادی ہوگی. تو کیا شادی پہ مجھے یہ بھی بتائیں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم نے تو کر لی نا. ہاں تو شادی کیا خوشی کی ضمانت ہوتی ہے عطیہ جی؟ یہ وہی ہے نا مدیحہ کہ کنڈیشنز اٹیچ کی ہوئی ہیں نا. دیکھو پیدا تو ہم سب ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ ہوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے, لیکن ہمیں ایموشنل لٹریٹ قوم نہیں ہے ہم نہ ہم بہت ہی ایموشنل لٹریسی والے ورڈز بھی نہیں یوز کرتے نا. ایکسپریشن صرف ایک ہے یا خوشی ہے یا غم ہے یا دکھ ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر گولز آپ کو کوئی اچیو کرنے ہیں, جو ہنا نے بھی بات اچھی کی, بہت بہترین بات کی کہ آبویسلی وہ آپ کے ڈریمز ہیں, وہ آپ کو گول اچیو کرنا ہی ہے, لیکن کیا اس کے ساتھ ہمیں ایموشن ہیپینس کا ہی اٹیچ کرنا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اس کے ساتھ ہمیں شاید سکسیس کا کرنا ہے. تو وی نیڈ ٹو بی مور ایموشنلی لٹریٹ کہ ہم کس طریقے سے اس چیز کو بتا رہے ہیں. اچھا شادی کے لیے بھی ہے کہ جب شادی کر رہے ہو تو آپ مکمل ہو جاؤ گے. اٹس اے ویری ویئرڈ کانسیپٹ ٹھیک ہے, لیکن جن لوگوں کا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اللہ معاف کرے آپ آہت ہیں کہ آپ کمپلیٹ نہیں ہیں, آپ آدھے ادھورے انسان ہیں. یس تو اگر اور اسی وجہ سے میں دیکھتی ہوں بہت سارے لوگ جسٹ بیکاز کہ ان کو ہوتا ہے ہم مکمل ہو جائیں, وہ کہتے ہیں ہم شادی کر لیں, شادی کر کے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے کیا کر لیا, کیونکہ جلدی دیکھو ان کے اندر یہ انڈیوس کیا ہوا ہے, ہماری سوسائٹی میں یہ انڈیوس کیا ہوا ہے تب تو مکمل ہوگے. تو ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے کہ ہم مکمل ہو یا نہ ہو, فی الحال ہم نامکمل ہیں. اور جب اگر ہم نے شادی کر بھی لی اینڈ وی گاٹ دیٹ پارٹنر ارسپیکٹیو آف کہ وہ اچھا ہو یا برا ہو, بس یہ دماغ میں آتا ہے کہ مکمل ہے لیکن پھر بھی ہم خوش کیوں نہیں ہیں. یہاں پر میں ایک چیز ضرور ایڈ آن کرنا چاہوں گی پلیز. یہ بہت ہی اچھی آپ نے بات کی, میرے دل کی بات آپ نے کہی. شادی یہ کام ہے ہمارے یہاں, ہمارے یہاں گول ہے, شادی ہونا گول ہے ہمارے یہاں. بیٹا تم یہ کام اپنے گھر جا کے کرنا, تو وہ گھر سے پڑھو لکھو تاکہ شادی ہو جائے اچھے گھر میں. او بھائی شادی ایسا نہیں ہے لائک آپ پڑھیں لکھیں شادی بھی ہو جائے گی, گولز اچیو کر لو شادی ہو جائے گی, اچھا انسان بن جاؤ تاکہ اچھی جگہ شادی ہو جائے. لائک ہر چیز سے شادی کو ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے, گورا نہیں ہوگا شادی نہیں ہوگی, فلاں نہیں ہوگا شادی نہیں ہوگی, کنڈیشنز. لیکن اگین مطلب پرسنلی اسپیکنگ میں ہمیشہ کہتی ہوں آئی ایم اے بلیور ان میرج. ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے یہ ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے, اور یہ عجیب طرح سے یہ وہ رشتہ ہے جو ایک خون کا رشتہ نہ ہونے کے باوجود ایک بہت کلوز رشتہ ہے, کیونکہ دنیا میں اتنا کلوز کہ اور کسی انسان سے آپ کا نہیں. کائنات میں پہلا رشتہ ہی جو خلق کیا گیا تھا وہ میاں بیوی کمپینینشپ. ابھی رائٹ ناؤ آئی ایم سوئچنگ ٹو اے بریک اینڈ یو سوئچ ٹو ورلڈ نمبر 1 BYD. کہیں میں جائے گا, بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور جناب سوال میرا آپ تمام تو لوگوں سے یہی ہے کہ کیا آپ اپنی زندگی میں خوش ہیں؟ چلے میں کہتی ہوں زندگی کی بات کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, مجھے صرف یہ بتاتے ہیں آپ آج کے دن خوش ہیں؟ کوئی ایسی چیز جو آپ کو خوشی دیتی ہے کہ آپ وہ کر بھی رہے ہیں, اور ایسی کیا چیزیں جو آپ کو روک رہی ہے اپنی وہ تمام تر چیزوں کو کرنے سے جو کہ آپ کو خوشی دیتی ہے؟ ایک چیز جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اور سوشل میڈیا کا دور ایک جھوٹا دور ہے. ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں, لوگ کپلز اتنی خوبصورت فوٹو شوٹ شیئر کرتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں دل سے دعا نکلتی کہ اللہ پاک ان کو خوش رکھے. لوگ مسلسل میں دیکھنے ایک اسٹرگل میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم خوش ہیں. پچھلے دنوں ایک شادی ہوئی, اٹ واز سچ اے بیوٹیفل کپل, یار کتنا پرفیکٹ ہے, میڈ فار ایچ ادر, کہ جو لڑکا تھا وہ اتنا خوبصورت, لڑکی بھی اتنی خوبصورت, اور اس کے بعد کچھ ہی مہینوں کے بعد وہ کانٹینٹ بنا کے ڈال بھی رہے تھے. بہت سے لوگ پہنچ بھی گئے ہوں گے دونوں ماڈل سے, اور اس کے بعد جو ان میں سے لڑکا تھا اسے اناؤنس کر دیا کہ ہم اپنی شادی ختم کر رہے ہیں. سو وہ چیز ایک دم سے دھچکا لگا کہ ابھی تو ہوئی تھی, ابھی تو ریل ڈالی تھی, اور اتنے تو خوبصورت دونوں ساتھ لگتے تھے, میڈ فار ایچ ادر لگتے تھے, اور ان کو دیکھ کے یقین نہیں ہوتا تھا کہ محبت کتنی خوبصورت ہے, لوگ کتنے خوشی سے جی رہے ہیں. لیکن نہیں, ایسی چیزیں نہیں ہوتی. سوشل میڈیا پہ ایک جو پریشر ہے کہ آپ نے لوگوں کو دکھانے, دیکھو میں تو باہر کھانا کھا رہی ہوں, پکچر بھی آپ نے اس کی ڈال دی. دیکھو میں تو اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا وہ ٹریول اس لیے کر رہے ہوتے کیونکہ لوگوں کو دکھانے کے لک کتنا مزہ آ رہا ہے مجھے زندگی میں. میں نے کسی کو ایک دفعہ کہا تھا یہ ٹریول کرتے ہوئے کہ یو آر سو کنزیومڈ ود ٹیکنگ پکچرز کہ آپ نے وہ تصویر لے کر دنیا کو بتانا ہے کہ آپ کہاں گئے ہیں, یو آر ناٹ انجوائنگ دیٹ ایکچوئل مومنٹ. میں نے کہا اچھا وہ کیونکہ میں اس طرح کی ہوں کہ مجھے سن سیٹ سے اور مجھے لگتا ہے کہ اسی جگہ پہ سن سیٹ روزانہ مختلف ہوتا ہے, تو میں نے کہا آپ اس کو کیپچر بھی نہیں کر پائیں گے اپنے کیمرے میں, لیکن یو آر مسنگ دی اپرچونٹی آف ایکچولی سیئنگ اٹ. تو وہ جو ہم کنزیوم ہو گئے نا اس چیز سے کہ جی ہم نے دنیا کو یہ احساس دلانا ہے کہ ہم خوش ہیں, اس میں یہ بھی چیز ہے کہ ہمیں وہ خوشی آج چاہیے.
मुझे वो खुशी अभी चाहिए। वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है कि बस अगर आज नहीं मिला तो डिप्रेशन हो जाएगा। वो जो एक सफ़र होता है आपका, उसका अपना एक मज़ा है कि आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हुए जा रहे होते हैं, और फिर आपको आगे जाकर जब वो चीज़ मिलती है जिसके लिए आपने स्ट्रगल की होती है, उसकी खुशी एक और तरह की। उसी तरह से शादी करना, इट्स अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, और उसमें भी आपको एफर्ट करना पड़ता है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन एवरीडे वर्क, रोज इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, आप करते रहते हैं, आप करते रहते हैं, मगर वो जो आप छोटे छोटे माइलस्टोन्स इकट्ठे अचीव करते हैं ना, वो ही खुशी की वजह होते हैं। सो आप एक छलांग मार के हाई जंप या लॉन्ग जंप के जरिए खुशी नहीं हासिल कर सकते। इट्स अ प्रोसेस। लेकिन आप देखती हैं ना सोशल मीडिया पे जो लोग आजकल बहुत फेक कर रहे थे हर चीज को, ये प्रेशर आप अपने आसपास, क्योंकि आज क्योंकि हम आसपास रोजाना हाँ उसमें ये भी होता है कि मुझे एक तरह से दिखना है, मुझे एक तरह से बनना है, हैशटैग अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे वो टीके भी लगवाने हैं, तो मुझे वो फिलर्स भी डलवाने हैं, तो मुझे वो ड्रिप्स भी लेनी है। आप किसके लिए कर रहे हैं? आप खुद तो खुश हो ही नहीं रहे, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली एक इन्फीरियोरिटी में जी रहे हैं। आपको कॉन्स्टेंटली लग रहा है कि मैंने कुछ अचीव नहीं किया, मैं मुकम्मल नहीं हूँ। अपनी एक्सेप्टेंस के लिए मेरी शक्ल, मेरी नाक ठीक नहीं है, तो कभी मेरी शादी नहीं हुई है, तो मेरे बच्चे नहीं हैं, तो मतलब मैं नामुकम्मल ही रहूंगी, कभी ना कभी तो कुछ कमी होगी ना मुझ में। बिल्कुल। मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स से मिली और मैंने इतना एंजॉय किया कि हम तस्वीर लेना ही भूल गए। सो आई थिंक वन ऑफ दोज मोमेंट्स जब हम पिक्चर या उस माइंड फ्रेम में ही नहीं होते कि मैंने दिखाना है, बताना है, आई थिंक दैट्स द मोमेंट व्हेन यू एंजॉय द मोमेंट, व्हेन यू ट्रूली हैप्पी। मैं अक्सर हम ऐसे गैदरिंग्स में जाते थे, खवातीन होती तो आपस में एक दूसरे से बात कम कर रहे होते हैं, सॉरी हाँ तो पिक्चर्स बहुत खींच रहे होते हैं स्नैपचैट के लिए, फॉरन पिक्चर्स, फॉरन सेल्फी सबको दिखाना। और आपस में मैं एक बार मैंने शिकायत भी की कि यार हम कोई आपस में बैठ के पूछते नहीं कि तुम ठीक हो, तुम खुश हो, घर में सब खैरियत है, कुछ ऐसी चीज़ तुम्हें बॉदर तो नहीं करी। हमें 2-3 लफ्ज़ पूछते नहीं, बस हमें होता है हम पिक्चर्स खींचे और चलो भी आगे निकल गए, फिर हम आगे किसी इवेंट में कि वहाँ जाकर हमने पिक्चर्स खींचना शुरू कर दी। लेकिन जो मैं इस सोशल मीडिया के दौर के बारे से बात करें, जहाँ पे एक सब पे एक प्रेशर है खुश दिखा, मतलब अपने बेस्ट वर्जन देने का, चाहे वो हो ना हो, ये कितना अनहेल्दी है उन लोगों के लिए जो कि हमारी इस दुनिया से नावाकिफ़ हैं और उनको लग रहा है कि देखा इसका तो सब परफेक्ट जा रहा है, ये तो देखो रोज़ शो में इतने अच्छे महंगे कपड़े पहन के बैठ जाती है, इसकी पास भाई कपड़े आज मैंने अपने कपड़े पहने हुए, वरना हमारे कपड़े बार्टर के होते हैं, ठीक है, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं। मैं 1000 बार बता चुकी अपनी शादी का भी कि मैंने अपनी शादी में कोई ये ना बोले कि जी हमने मदिरा से महंगा लहंगा बनवाना है। मेरी तो दो दोस्त से फैशन डिज़ाइनर्स ने, उन्होंने मुझे कपड़े दिए, मैंने पहन लिए, अल्लाह खैर से अल्लाह। तो मैं तो आज भी बाटर पहन के आई। तो आप डिजाइनर्स देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये जो एक प्रेशर है हम पे, हाउ डू यू टेक इट? सो क्या होता है कि अक्सर लोग कंपेयर करते रहते हैं और हमारा दिमाग इस तरह डिजाइंड है कि वो नेगेटिव चीजें पहले पिक करता है। तो ये कहते हैं कि शुक्र करना एक प्रैक्टिस है। मैं एक टेड टॉक देख रही थी जिसमें कहा कि हम नेगेटिव बाय डिफॉल्ट हैं, कि हम यूजुअली पहले नेगेटिव चीज पिक करेंगे। और सोशल मीडिया में जब हम कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं कि अच्छा मेरा शौहर इतना अमीर नहीं है, इसका शौहर इसको यहाँ लेके जा रहा है, इसने ये कपड़े पहने हुए, तो कंटिन्यूसली आप एक डिसकनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं अपने आप से कि अब मेरे पास ये नहीं है। और जब हम उस तरफ जाते रहते हैं तो वो एक ना खत्म होने वाली एक स्पेस है, और फिर आप खुश नहीं होते। और जब आप जेन्युइनली खुश होते हैं ना, वो नीड कम हो जाती है टू शो इट टू एनीबॉडी। कुछ एग्जांपल्स के साथ मैंने समझाया, और आपने जैसे बात की ना कि एक हम नेगेटिव चीज़ पहले पिक करते हैं। 105 कमेंट्स आपके पिक्चर के नीचे, सबने कहा बहुत शेगरी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बंदे ने लिख लिया है कि कितनी मनूस लग रही हो, वो कमेंट दिन को चुप किया, जिसमें मुझे मनूस का है। वो 104 लोगों ने जो तारीफ की है उसको मैंने शुक्रिया अदा किया। वो जो एक बंदा जिसे मनूस कह दिया वो दिल को लगी, क्योंकि वो नेचुरल है ना, 1:3 का वो है ना कि 3 तरफ जो है ना, वो 3 टाइम्स जो है ना वो आपको नेगेटिव बाइसेस ही की तरफ ना, हम जैसे तूबा ने बोला ना कि हमारा इनबिल्ट मैकेनिज्म ये है कि हम नेगेटिविटी की तरफ पहले जाते हैं और पॉजिटिव सिर्फ हमारा जो होता है ना वो 1% होता है। मगर ये जो सोशल मीडिया ना, इट्स काइंड ऑफ क्रिएटेड दैट इम्पोस्टर सिंड्रोम ना। कनेक्टिविटी हमारी 4 बैठे हुए हैं या 5 बैठे हुए हैं, हमारी आपस की कनेक्टिविटी से ज़्यादा हमारे लिए ये है कि हमने उस इम्पोस्टर को दिखाना है कि हम कितने खुश हैं, हम कितने मीडिया पे आ रहे हैं, हम कितने रिलैक्स हैं, कितने दोस्तें हैं हम। माइट बी कि वी आर मीटिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, लेकिन हम बताएंगे दुनिया के लिए कि कि हम तो मैं तो बहुत जानती हूँ मदीहा को एंड ऑल, लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। अब वहां से वाह आनी शुरू होगी। इट्स ऑल एन इनबिल्ट थिंग ना कि आप क्रिएट कर रहे हैं, आप नेचुरली तो नहीं कर रहे हैं ना।
इसी को हम इम्पोस्टर कहते हैं। तो सोशल मीडिया के अभी तो अब जाके तो आहिस्ता आहिस्ता करके ऑब्वियसली जब इतने मेंटल हेल्थ क्राइसिस भी आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि इसके साइड इफेक्ट्स हैं कितने, बिकॉज हमने उस कनेक्टिविटी को लूज कर दिया और जो कि हमें अप्रेजल के तौर पर डोपामीन रश मिल रहा है ना, फौरन हमें हमारा रिजल्ट मिल रहा है, ओ माय गॉड यू लुकिंग सो अच्छा, तो वहाँ गई थी, वो आपको जो कांस्टेंट और इमीडिएट जो रीइंफोर्सेस मिलते हैं ना, तो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, वो आपको डोपामीन का खाना है। तो वो खाना है तो हमें लगता है कि अपेरेंटली हम बहुत खुश हैं कि वी अचीव दिस, लेकिन खुशी तो वही है ना कि जैसे अल्लाह मैंने भी तो कहा ना कि मेरी शुक्र, अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनो, यू हैव टू लर्न हाउ टू बी हैप्पी एंड टू हैव सोशल ग्रेटिट्यूड। मीडिया हमें हैप्पी से कहीं ज़्यादा हमें अनहैप्पी कर रहा है, क्योंकि वो है ना कि कांस्टेंट एक हम मुकाबलेबाजी जो कर रहे हैं। Comparison। हाँ देखिए, हम जिस लोग जो हमारा एक है कि हमने टेलीविज़न पे आना है, उसके बाद फिर हमारी अपनी वो कहते हैं सीनियर बिलीविंग, तो हमें अपने सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं उनको भी हमें समहा उसको एक्टिव रखना होता है। एंड ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लम्हात होते हैं जब आपका दिल ही नहीं करता कि आप कुछ पोस्ट करो, तो लोग कहते हैं नहीं तुम डल जा रही हो, प्लीज़ तुम अपने, तो तुम्हारे व्यूअर्स हैं वो तुमसे कुछ एक्सपेक्ट करें। एक ये प्रेशर भी है, बिल्कुल ऐसा ही प्रेशर है, और ये प्रेशर हम सभी के ऊपर आ गया है somehow, क्योंकि जो लोग मीडिया से रिलेटेड है उनको तो फॉर श्योर अप टू डेट रखना है, चाहे वो होस्ट हैं चाहे वो जर्नलिस्ट हैं। आपको लोग जो हैं वो दे लुक अप लाइक के आज मदिहा क्या करेंगी शो के बाद, उन्होंने कहाँ खाना खाया है, उन्होंने किस खाने की तारीफ की है, उन्होंने क्या डिज़ाइनर पहना था, तो ये तो होता ही है वही बात। लेकिन हम अगर शुरू से ये साइकिल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वही सब्र और शुक्र से शुरू हो रहा है। जब हम ऑफ एयर थे मैंने आपसे कहा था कि मैंने एक किस्सा सुना जिसमें मुझे सुन के गूज़ बम्स आ गए। वो सब्र शुक्र और इसका एक ऐसी एग्जाम्पल का किस्सा है कि मुझे लगता है मेरे बयान करते ही आप सब चीज़ें समझ जाएंगे, ऑटोमेटिकली कुछ डाउनलोड हो जाएगा आपके जहनों में। हुआ कुछ यूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पास जाया करते थे, उनको शर्फ हासिल था कि वो उनसे मुखातिब करते थे। जब एक रोज़ वो जा रहे थे तो दरमियान से, मैं बहुत एक सलीस उर्दू में आप लोगों को बताऊँगी ये वाक़या, एक बिजनेसमैन उनको मिले, कहते हैं कहाँ जा रहे हो मूसा? उन्होंने कहा अल्लाह ताला के पास। कहते हैं अच्छा उनसे कहना बहुत दे दिया है मुझे, अब बस करें। वो कहते हैं अच्छा ठीक है। वो आगे बढ़ते हैं, उन्हें फ़कीर मिलता है, कहते हैं कहाँ चले मूसा? वो कहते हैं अल्लाह ताला के पास। कहते हैं उनसे कहना ज़रा कुछ नज़र करम करें कुछ मुझ पर। अल्लाह ताला के पास जाते हैं, अल्लाह ताला से मुखातिब होते हैं, वो अल्लाह ताला उन्हें मैसेज देते हैं, वो वापस आते हैं। बिजनेसमैन पहले मिलता है, वो कहते हैं हाँ भी मूसा आप गए थे, बात किया आपने अल्लाह ताला से? उन्होंने कहा हाँ, अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम शुक्र अदा करना छोड़ दो, हम तुम्हें देना बंद कर देंगे। तो कहते हैं आप कैसी बातें कर रहे हैं, शुक्र अदा करना कैसे बंद कर दूं, इतना उन्होंने मुझे नवाजा, मैं शुक्र अदा करना मैं तो नहीं छोड़ूंगा। बचपन में बिल्कुल हमने किस्सा बिल्कुल। और उसके बाद वो फकीर मिलता है, कहते हैं मूसा बात की तुमने अल्लाह से मेरे लिए? उन्होंने कहा हाँ, तुम शुक्र अदा करना शुरू कर दो। उसने कहा किस चीज़ का शुक्र अदा करूं? इस लंगोट का जो मैंने पहनी हुई, एक हवा का झोंका चलता है वो लंगोट भी चला जाता है। इस किस्से ने मेरे गूज बम्स ऐसे मतलब लाइक मुझे लगा कि पता नहीं ये कहाँ से कुछ डाउनलोड हो गया कि मुझे कितना सब्र और शुक्र अदा करना ज़रूरी है। और हम जो हैं खुशी नहीं होते किसी भी चीज़ में, हमें चाहिए पता नहीं क्या चीज़ बड़ी से बड़ी खुश होने के लिए। नहीं भाई, ये इट्स फ्री, खुश होना इट्स फ्री, इसके पैसे नहीं लगते। इट्स लाइक ऑक्सीजन। इट्स लाइक खुशी, कभी कभी खुशी जो है ना, और मैं हमेशा से रिस्क के वाले से बात करती हूँ कि रिस्क इज नॉट माली जो कि आपके बैंक अकाउंट में गिर रहा है या दूसरी तारीख को। माँ बाप का हयात होना, अच्छे दोस्तों का होना, सेहत का होना, लोगों का आपसे मोहब्बत करना, ये खुद बहुत बड़ा रिस्क है। और सबसे बड़ा रिस्क ये है कि मेरी वालदा जैसे मैं उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ, अम्मी जन्नत में है मेरी, मुझे पूरा यकीन है क्योंकि मेरी अम्मी ने हमें बड़ी विलाय रसूल और विलाय अहले बैत दी। तो ये मुझे लगता है कि इस बात में इतनी खुशी होती है कि अम्मी थैंक यू, कि इसके बड़ा मैं अल्लाह का इस बात भी शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने एक तो मुसलमान घराने में पैदा किया और तूने अपने नबी की मोहब्बत अपने हमारे दिल में डाल दी। अतिया मुझे एक बात याद आई है, देखिए वो कहते हैं ना, हम बात कर रहे थे कि आजकल लोग अवेयर नहीं है या मेंटली या साइकोलॉजिकली वो कॉन्शियसनेस नहीं है, वो अवेयरनेस नहीं है, वो एजुकेशन नहीं है। मेरी अम्मी एक लफ्ज़ इस्तेमाल करती थी अर्थी विज़डम, कि जो लोग ग्राउंडेड होते हैं ना, वो अपनी ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो बड़े समझदार लोग होते हैं बिल्कुल, और वो अपने इमोशन से बड़े वेल कनेक्टेड होते हैं। बिल्कुल ऐसा है। तो एक शूट एक ज़माने में हमारे वो गाड़ियाँ लगी बंदी होती हैं, वही ड्राइवर्स होते हैं, तो वो एक हमारे ड्राइवर थे, अगर वो कभी देख लें दोस्त अली, मुझे आप आज तक याद है, इंटीरियर सिंध के थे, कभी स्कूल नहीं देखा, कभी कुछ किताब नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं, लेकिन आज से ना मैं पीपल्स पर्सन, हम बातें करते हुए जाते थे रोज़ाना। तो मुझे एक दिन कहने लगे कि मैडम मैंने आपकी अम्मी अब्बू से मिलना है। तो मुझे हंसी आ गई, तो अम्मी तो हयात थी, अब्बू नहीं थे। तो मैंने कहा अब्बू से तो मिलना मुश्किल, बड़ी दूर जा चुके हैं, अम्मी आजकल गई नहीं है, जब आएंगी मिलवा दूँगी। मैंने कहा आप क्यों मिलना चाहते हैं?
तो कहने लगे कि उनके आप बड़ी खुशकिस्मत हैं। इनका क्या मतलब? तो उन्होंने बड़ी पते की बात की। कहने लगे आपने कभी सोचा कि आप अपने लिए दुनिया में अल्लाह से सब कुछ मांग सकते हैं, अच्छी औलाद भी मांग सकते हैं, ज़िंदगी के हर फेज़ में कुछ ना कुछ मांग सकते हैं, आप अपने लिए अच्छे माँ बाप नहीं मांग सकते। क्योंकि वो तो आपकी किस्मत है, अल्लाह ने जहाँ पैदा कर दिया। बिल्कुल अच्छे माँ बाप के बनने का मतलब है कि आपकी सारी जिंदगी संवर गई, क्योंकि उन्होंने आपको वो कदरें दे दी, वो सिखा दिया, वो बता दिया, उन चीज़ों से मुतारफ करवा दिया कि आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। आप मांग के नहीं ले सकते अच्छे माँ बाप। बहुत खूबसूरत बात है। एंड यू नो, आप कह रहे ना गूज बम्प्स में आए, एक्चुअली मुझे रोना आ गया। ये तो वाहिद चीज़ है जिसका हम शुक्र अदा करते ही नहीं, सोचा ही नहीं इस बारे में लेते हैं कितना बड़ा रिस्क है ये भी क्या कि अगर शुरुआत ही आपकी गलत हो जाए तो क्या शिकवा करेंगे आप? ये तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये हो गई, अच्छी वालदा। जी, जिसने आपकी अच्छी तरबियत की हो, आपने अच्छी मिल जाए। तरबियत की हो, और वो कहते हैं कि आपके दिल में विला डाली हो, मोहब्बत डाली हो। मुझे एक बात आप बताइए, तो हम खुशी की डेफिनेशन तो हम लोगों के सामने रखते हैं। हम अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो बज़ाहिर खुश नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं। हम कैसे रीड कर सकते हैं? हम उनके लिए बाइस फरहत कैसे बन सकते हैं? जैसे उन्होंने पहले बात की ना एनर्जीज की, तो जब हम किसी से मिलते हैं ना, हमारी बॉडी की इंटेलिजेंस बहुत है। सो आई थिंक द मोस्ट ऑफ इज द बॉडी इंटेलिजेंस कि कौन कैसे बैठा है, बात कर रहा है। आपको महसूस हो जाएगा कि ये अल्फाज तो बिल्कुल ठीक हैं, बस समथिंग इज नॉट ओके, जो हमने अपनी उस इंस्टिंक्ट को वाकई सुनना होता है। सो वी नीड टू रियली एक्नॉलेज दैट। और मुझे लगता है औरतों के पास तो ये खुसूसियत होती है, और बहुत दफ़ा सोसाइटी उनको ना वो कहते हैं ओवर थिंक नहीं करो, बट आई थिंक ये हमारी सुपर पावर है। तो जब हम नोट करें ना, हमें महसूस हो कि कोई खुश नहीं है, तो रियली लाइक ट्राई टू आस्क देम। बिकॉज रिसेंटली मैंने एक दोस्त से बात की, उसकी शादी हो, पिक्चर्स लगाए जाए, मैं कहा मुझे लग नहीं रहा तुम खुश हो। सो दिस वाज मी बीइंग ऑनेस्ट एंड शी इज लाइक क्या मतलब? मैंने कहा ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। मुझे से तुम इतना क्यों मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, वो कहते हैं तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या गम है जिसको छुपा रहे मैंने हो? उसको वो प्यार से पूछा कि इफ यू फील लाइक शेयरिंग, एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग दैट आई एम नॉट हैप्पी। ओह माय गॉड, तुम ये आपको वैसे जो अच्छा दोस्त है ना वो पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप तो खुश हो, कभी कभी खुशी ये भी कि आपके आसपास के जो लोग हैं ना, जो गमगीन है, वो खुश हो जाएं। मैं एक छोटी सी जनाब ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि हमारी बॉडी कैसे डिटेक्ट कर सकती है कि हमारे जो दोस्त हैं हमारे घर में प्यारे हैं। क्योंकि अभी मैंने आपको कल अपने शो में दिखाया ना कि लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में एक तालिब इल्म ने तीसरी मंजिल से कूद के अपनी जान दे दी। कितना प्रेशर में था कि उसको उसके असातिज़ा उसको पेपर में अपेयर नहीं होने दे रहे थे, उसकी अटेंडेंस कम थी, उसको ह्यूमिलिएट किया गया और कोई इसको सुन नहीं रहा था। पता नहीं, और मैंने कल भी जैसे बात की ना कि ना जाने उस पर कितना प्रेशर होगा कि मेरे अम्मा बाबा ने मेरे सेमेस्टर की फ़ीस कैसे अदा की थी, आगे ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मैं इनको मुंह कैसे दिखाऊंगा, मैं फेस कैसे करूँगा। पता नहीं अपने अंदर कितना कुछ पाइलअप करके जा रहा था कि उसको लगा कि यही डेड एंड है और बस अब मैं अपने आप को मार लेता हूँ, मैं सबके सामने आप खुद को मारूँगा। जस्ट इमेजिन, मैं सोचती हूँ तो मैं खुद इतनी तकलीफ़ में चली जाती हूँ और मैं खुद इतना बेबस फील करती हूँ कि हाय किसी ने, मतलब माँ ने कितनी मुश्किल से एक बच्चा जवान किया और उस बच्चे ने किस तरह से अपनी जान ले ली। सो बड़ा ज़रूरी है। मुझे लगता है उस बच्चे के साथ भी मसला हुआ कि उसको कोई शोल्डर नहीं मिला जहाँ पे वो बात कर सकते, उसको किसी ने उसको सुना नहीं। काश उसको सुनता, उसको समझा लेता। पता नहीं अंदर क्या कुछ पायलअप हो रहा था। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम पहचान पाएँ कि कोई अंदर से कितना गमगीन चल रहा है, किसके अंदर क्या टेंशन चल रही है। और आप उस पर बात कर लीजिए, अपनी दोस्त की मिसाल दे लीजिए। जी, तो मैं जब उससे बात की तो मुझे महसूस हुआ, देखिए जब हम किसी शख्स में देखेंगे वो बहुत तेज़ बात कर रहा है, या वो लॉस्ट है, या ओवर ईटिंग है, लैक ऑफ स्लीप है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तो कोई ना कोई आप उनके बिहेवियर में नोट करेंगे। और सबसे बेस्ट होता है आपकी एनर्जी। जब हम देखते हैं, हम कहते हैं कुछ ठीक नहीं है, कभी कभी आप गायब भी हो जाते हैं सोशल मीडिया से एकदम। बिल्कुल कुछ तो भी नहीं। हमने पहले ना ये नोट, अगर हमें ऑब्जर्वेशन हो तो पहल करें, बात करने का रूम दें। मैंने जब अपनी दोस्त की एग्जांपल दी, शुरू में उसने डिनाई किया, मैंने कहा ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने इम्पोज नहीं करनी, बस झूठ मत बोलो। जब हम कोई ताना मारते हैं या कोई इंफॉर्मेशन डिस्ट्रैक्ट करने वाली भी एनर्जी होती है ना कि बड़ी अच्छी लग रही हो, कहाँ जा रही हो, सो अगला खुद को ज्यादा वो कंपोज शट कर डाउन लेता कर है। जाता है। जैसे आप कहते हैं कि आई एम हियर टू फैसिलिटेट यू, क्योंकि
बहुत कम लोग जेन्युइन बात कर रहे होते हैं, तो हर कोई अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, इसको मिसयूज ना करे. And then she started crying. And then I heard her and I was like, this is evident and I'm here for you. बस उसने मुझसे शेयर किया, वो मतलब she was like, I'm good. So it is so important कि जब हम कोई चीज नोट out करना करें कितना जरूरी तो है. आप लोगों को वो रूम दें. वो एक मैंने इंटरव्यू देखा था किसी का कि वो कह रहे थे हमने अपनी मीटिंग कैंसिल की. मैंने कहा क्या बात है, जब हम ऐसे पहल करते हैं बॉडी लैंग्वेज के, क्या आई कैन होल्ड यू, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें पता ये है कुछ मैं हूँ. अल्फाज बोल याद दें रखना. हाँ, सो देन आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. दूसरा मैं कहूँगी एक डॉक्टर इमोटो का एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया पानी के ऊपर कि मुख्तलिफ अल्फाज लिखे कि एंग्री और यू नो जेलसी व्हाटएवर, और फिर पानी के मॉलिक्यूल उसको टेस्ट किया. तो जो पानी को कहा गया म्यूजिक के थ्रू, अल्फाजों के थ्रू, राइट, देखो मैंने कल बात और की. हम 70% पानी है. जी, तो अगर आपका माहौल, मैं आपको बताऊं, अगर मैं शक्ल डिफरेंट हो जाती है, चेंज हो जाती तो मैं है. अगर जहन में भी सोचूं ना कि लाइक यू नो आई डोंट लाइक हर, आई एम सेंडिंग दिस एनर्जी एंड यू आर रिसीविंग इट. yes. अब एक बच्चा कंटिन्यूसली नेगेटिव मैसेजेस, तुम्हें फर्स्ट आना है, तुमने ये आना है, वो आना है, वो उसके पास रूम ही नहीं टू बी हिमसेल्फ, राइट. वो कह रहा है कि मैं डिसफंक्शनल क्रिएट हो गया ना, क्योंकि वो बता ही नहीं सकता अम्मी के आई हैव फेल्ड एंड आई हैव मेड मिस्टेक्स. वो इनकरेज ही नहीं किया. तो जब वो बॉटल डाउन होती रहती हैं चीजें, बुलिंग होती रहती है, तो देन समहाउ यू कोलैप्स बिकॉज यू डोंट नो वेयर टू गो. सो दिस इज आई थिंक कि हमारा माहौल हमें क्या एनर्जी दे रहा है.